कामरा भी जाके पागल हो गया है पौंडीचेरी, तो मतलब I love that. गांगुली was like, ये मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ, फिर क्लोथिंग पंच मेरे की कामरा का भी दिमाग खराब हो गया, कामरा भी पागल हो गया पौंडीचेरी जाके. And I'd gone with Uruj the first time we'd gone together. तो उसको 4-5 दिन में था कि अब चलेंगे इंडियन खा लें. मैंने कहा नो, ये वाला काम तुम अकेले कर लो. I think it's very similar, but at the same I just feel like I'm a white person. I forget. Sentence of the podcast. हमें मिल गया clickbait thumbnail. Actual घोड़े कहते चढ़ जाओ इन पे. हमने कहा क्या मतलब, हमें घोड़े चलाने नहीं आते. नहीं, you sit on them and the horses know how to go on the trail, so you get a sense of you're actually riding the horse. And they taught us 2 commands. And you see very few unique voices. And So आप start करो. One place you will never go and why? Kasoli. We had a terrible experience. वर्ल्ड टूर अनाउंसमेंट बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट्स. यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टिकट्स लाइव हो चुकी हैं tannanamit.com पे. यूएस है फरवरी में और उसके बाद यूके है मई में और सितंबर में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. tannanamit.com पे आप टिकट्स खरीद सकते हैं. हर जगह नए शोज़ हैं. अगर आप वहाँ रहते हैं तो खुद खरीद लीजिए. अगर आप वहाँ नहीं रहते तो अपने दोस्तों को बता दीजिए. और अब पॉडकास्ट Hello. Welcome to चार यार पॉडकास्ट, चैट शो, whatever you can call it. जहाँ 2 लोग नहीं, हम 4 लोग बात करें और हर बार हम एक नया टॉपिक उठाते हैं. तो इस बार मेरे साथ जो 3 कमेडियन हैं, सबके सब चश्मा लगाने वाले हैं. ये पहली बार हो रहा है, ठीक है. पढ़े लिखे लोग पहली बार आए क्या आज? But I've seen them from their first open mics. I remember Khamba, first open mic. Route 69 was the Route place. 64. Route 04. Route 04, Gurgaon. And Rajneesh had told me about ki Gursimran Khamba is there, and Papa, you have to wear him. He's so good, Papa. you got to watch him. yes, sorry. Okay. You got to watch him, you know. So I was also there. I was also performing, and Khamba was performing for the first time. And he already told you have to watch him. It was my first. हाँ, अरे Your blogs build are up, all very हाँ. popular यार, then तो इसीलिए. I didn't know the blogs. I was told कि Twitter पे he's very famous, and I did not know what Twitter is at that time. This is 2010. Whole of Delhi, sir. You and everybody in Delhi. और तब इसके 7,000 फॉलोअर थे, if I remember, on Twitter. अच्छा, इतना तो मुझे नहीं याद. मेरे Twitter. Because टंडन कब से मैट्रिक्स नोट. This was 2010. 10. Earlier. 2009 or something. maybe then 2009. Yeah. तो तब फर्स्ट ओपन माइक था, एंड तब कोई ट्विटर का आइडिया नहीं था मुझे. एंड दैट्स व्हेन आई ज्वाइन ट्विटर टू फॉलो खंबा, टू सी व्हाट इज दिस न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट उस टाइम की पूनम पांडे था मैं. मेरे के कारण लोग फॉलो कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे. हाँ, देख, इसको बहुत फायदा हुआ उस पे. हमने ट्विटर छोड़ दिए, हम वहीं पड़े हुए हैं. लगे हुए हैं हम लोग. नहीं, बट द थिंग इज कि देयर वाज एन एडवांटेज, दैट ही हैड. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2011 World Cup, he traveled and watched every match. Pepsi had sponsored, I think. Yes. He got to watch every match live in the stadium. And it was a very cool sponsorship because I was not supposed to say that I am sponsored. They had picked a team of 11 people who they will take across the World Cup, where I was one of the 11 who was the fixed contestant कि भाई बाकियों को देख लेना है ना, तुम तो कुछ content निकाल देना, बाकियों को पता नहीं. तो it was quite fun, yeah. So that was an advantage. This is when social media agencies didn't know कि Twitter क्या है. तो you could say whatever and scam them for money. कि हाँ, 1000 लोगों ने देखा है, इसके इतने 1000 रुपए दे दो आप. How long was the legal obligation कि कब तक नहीं बोल सकते, कि मतलब अब बोलने पे. नहीं, ये तो नहीं. No, even when they were coming out, I could figure out that this is by Pepsi. So it's not that people didn't know, but you were. I don't know what the arrangement was. You would not name Pepsi, but I knew at that time that Pepsi. He never told me that Pepsi had sponsored it. बट वी न्यू कि हाँ, ये वही लोग करवा रहे हैं. इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता ये आदमी. वॉच एवरी मैच, ऑल सेंचुरीज, इंडिया पिकिंग अप द वर्ल्ड कप ट्रॉफी, एवरीथिंग यू गॉट टू वॉच. What a great way to मतलब. हाँ, thank you Pepsi. If you would like to sponsor again, very happy for Champions Trophy 25 and any other trophies. Twitter ही बोलते हैं यार. Twitter no, Twitter के अपने एम्प्लॉय से थैंक यू नहीं बोलते. हम क्या बोल रहे हैं अभी? Twitter को थैंक यू. हाँ, X.
X. Sorry. X. And then again, Abhijit I know from the first open mic itself. And मेरा second open mic था वो. तो मैं तब से देख रहा हूँ इसको perform करते हुए. और एंड ये पहले टाइम से ना ये सीधा कॉलेज से आ रहा था तो डिबेट विबेट इसका फ्लो बड़ा अच्छा था एंड खंबा वेंट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वन दैट ओपन माइक Me and Nishant Tanwar yeah. were co-winners, and Rajneesh had kept a 4,000 rupee cash prize, which we split to 2,000 bucks. I remember. 5,000 if I'm not wrong. नहीं चार यार. नहीं And I चार. think निशांत तेरे को बड़े पैसे पे नजर थी तेरी. तो निशांत ने बोला था आगे कि मैंने उसको बोला भी जाके कि तू ये ले ले because you deserve it, you won the first में ही आया था, so he was like you should have it or something like that. ऐसा कुछ. अच्छा मेरे में बड़प्पन था तब इतना. वाओ नाइस. थैंक यू निशांत. नो प्रॉब्लम. इट्स ऑल गुड. तो इसको मैंने देखा था तो ये भी डिबेट से सीधा आ रहा था और मैं देखो 10-12 साल बाद चढ़ रहा था तो मेरे तो बहुत स्टेज फियर होता था तो मैं तो बहुत धीरे ये इसको मैं देख रहा था मैं कहा यार पहले दिन ही आ रहा है पहले दिन ही इतना अच्छा कर रहा है यार मतलब कोई Correct. वो नहीं है हेजिटेशन नहीं है वो नहीं है एंड then I think for a lot of time we started meeting and writing together, me, Abhijit and Neeti, and we did quite a few shows together. You with Amit a lot, no? Back in the day, no. We started properly writing like 4 years Because ago. Amit does this brilliant thing of whenever he turns, मतलब ऐसे rejecting your joke ना, like every time we are workshopping or something, तुम कोई joke बोलेगा and now it's like नहीं ये funny नहीं. I can imagine, yes. ये क्या flip कर दिया अचानक से कि शुरू में खुश करके नहीं बिल्कुल भी नहीं. देखो ये पेरेंटहुड से आता है कि कैसे करेक्टली रिजेक्ट करना है फालतू थॉट्स. हाँ नहीं पेरेंटहुड मैं एक्चुअली ज्यादा वो हूँ मतलब आई एम वेरी क्रिटिकल दैट वे कि जैसे अब सानवी जो है ना सानवी इज बीन लर्निंग डांस फॉर अ वाइल एंड शी पुट्स अप रील सो like it's a good thing she would always every time she'll record a piece of dance she would show it to me you know कि पापा कैसा लग रहा है and you would be like नहीं बट आई वॉज वेरी लाइक कि अरे ये नहीं ठीक लग रहा है तेरे एक्सप्रेशन भी नहीं सही आ रहे हैं ये नहीं सही हो रहा भाई साहब. है एंड यू नो somebody told me कि you know why did you say like this you know तुमको encourage करो ना अपने मैं कहा पर हगा हुआ थोड़ा ना encourage करूंगा तो improve कैसे करेगा बच्चा यही तो फर्क है बॉलीवुड के नेपो बेबीज और हमारे बच्चों में यही फर्क है कोई बोलता ही नहीं है नेपो बेबीज को कि हग रहे हो तुम. हिंदी सीख लो थोड़ी पहले. टेरिबल. हाँ वो इंग्लिश एक्सेंट वाली जो हिंदी आती है हाँ एंड प्रशस्ति आई रिमेम्बर आई सॉ हर एट लीपिंग विंडोज Oh my god. हाँ लीपिंग विंडोज में वो जो अंडरग्राउंड वाला जो वेन्यू है Fire वहाँ पे hazard. आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम यार ये कौन है ये तो बहुत अच्छा करती है एंड द थिंग इज हर वॉइस वाज वेरी यूनिक फ्रॉम वॉट एवर वी वर हियरिंग एट दैट टाइम Agreed. and you see very few unique voices and तो मैंने इसका नंबर लिया उस टाइम कि यू नो आई रियली लाइक योर बिट एंड आई हैड नो आइडिया कि कॉमिक्सतान शूट हो चुका है और ये उसमें बहुत किल कर चुकी है तो मेरे को क्या आइडिया Correct. तो मैं जाके you should do comedy more seriously. पर उस समय शूट के बाद तो ऐसे ही था ना we were all figuring it out. nobody knew so the thing is I just went to her and I took her number and I was like you know I might have a couple of writing projects and she was like yeah ठीक है and then 3-4 months later I think Comicstan came out and I was like oh तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देना चाहिए था. अब तो ज्यादा पैसा लगेगा. But I think मेरा भी फेज वो था कि उस समय I had a full time job so and after shooting Comics also I was like कि मुझे कॉमेडी थोड़ी करनी है लाइफ में. अच्छा you were still not sure I taken sabbatical for Comics था. इनका मैसेज वगैरह भी आया तब भी it was not that I was like कि अब तो मैं तो सीनियर कॉमेडियन हो चुकी हूँ. It was like कि मुझे तो जॉब करनी है ये कॉमेडी तो मैंने वो 2 महीने sabbatical लेके कर लिया and at that time no one knew that Comicstan would be big so I was like ये फालतू के सपने मुझे देखने ही नहीं है और ये बेरोजगारी की लाइन में मुझे जाना ही नहीं है. लोग मुझे राइटर बनने क्यों बोल रहे हैं मैं ब्रांड मैनेजर हूँ. मैं हायर करती हूँ राइटर. तुम काम करो मेल. करेक्ट. तो मेरे तो अलग ही सीन चल रहा था. और राइटर को पता था ना कितने को पैसे देते हैं हम इतने में तो मेरा किराया भी नहीं आएगा जितना तुम You were in Deloitte only तभी. नहीं I was with Star TV. ये मेरा पोस्ट MBA का जो वाला जो जॉब था. and the thing is like Comicstan she didn't win but her voice stood out big time. Her voice stood out big time. It was not like not funny. it was so unique and I've seen a lot of people talking about it later on also
And I think now let's come back to the topic. So we are talking about travel today because as comedians we've all traveled a lot. Prashasti, why don't you do the honors? Pick up the first chit and let's figure out. बड़ी तंबोला वाली फील आ रही है. Two fat ladies. Do you okay. Do you plan elaborate trips or is it very last minute देखा जाएगा type? या ये तो मेरा पर्सनालिटी का ही इशू है कि नहीं, मैं वो इम्पल्सिव वाला ट्रेड कभी आ ही नहीं पाया मेरे अंदर. मैंने बहुत कोशिश भी की कि दिस इज कूलर. So if you have to go to If I have to go somewhere, I really plan. And I think when I was younger, actually, I would not travel only because I used to get so much anxiety कि इतना planning करना पड़ेगा. And if someone else plans, I would not trust them. कि ये because when you're young तो पैसे कम होते हैं और मुझे पैसे कम वाली ट्रिप में बहुत प्रॉब्लम होती थी. आई डोंट हैव द मनी टू अफोर्ड अ गुड ट्रिप, बट हाँ आई कांट स्टे. लाइक मैं होता नहीं कि कुछ आई डोंट नो कैसे हुआ मेरे साथ ये कि मैं बड़ी तो गरीबी में ही हुई हूँ एक तरीके से. बट लाइक स्टूडेंट ट्रिप्स वेयर फ्रेंड्स वुड प्लान समथिंग, हम यहाँ जाएंगे और किसी ऐसे लॉज में रह लेंगे और बस से पहाड़ पे चढ़ जाएंगे. देन आई वुड जस्ट अवॉइड इट बिकॉज लाइक आई जस्ट कुड नॉट. एंड खुद से प्लान करने के लिए आई वुड गेट एंग्जाइटी बिकॉज आई हैव टू बी सो मेटिकुलस. सो अब मैं ट्रैवल करती हूँ खुद से एंड वो आई हैव टू प्लान अलॉट. लाइक अगर वो 6 महीने बाद का ट्रिप है तो आई विल मेक ऑल द बुकिंग्स, आइटिनरी क्या करना है, एवरीथिंग. एंड इट्स आई थिंक इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स दैट आई डू ऑल्सो. इम्पल्सिव ट्रैवल तो मतलब unless last minute चलो चलें. Have you done an impulsive thing? Like, can you think of an example? थिंग या ट्रैवल ट्रैवल वाइज मतलब ऐसा कर लेती हूँ कि इफ आई एम इन द सिटी. हाँ ये करेक्ट कि इफ आई एम ट्रैवलिंग. कल शो है आपका यहाँ पे तो हो गया ट्रैवल इंपल्सिव. नहीं ऐसा मैं कर लेती हूँ कि इफ आई एम इन अ प्लेस ऑल्सो. हाँ करेक्ट कि वन थिंग आई फिगर्ड आउट इज कि व्हेन आई गो अब्रॉड फॉर एग्जांपल और गो टू अ न्यू प्लेस, आई डोंट लाइक टू कि ये टूरिस्ट स्पॉट कवर करना है ऐसा मुझे नहीं रहता है. सो माई डे इज ओपन टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो मैं एम्बिगुअसली कर लेती हूँ कि अच्छा अगर पेरिस में चल रहे हैं तो चल के कहीं भी चले गए, कुछ भी खा लिया. सो दैट स्पॉन्टेनिटी आई एग्जीक्यूट. बट इफ आई हैव टू, जहाँ भी बेसिकली लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे गलत हो सकता है कि अगर बुकिंग नहीं की तो बुकिंग नहीं मिलेगी, या अगर फ्लाइट में तुमने ठीक से प्लानिंग नहीं की तो वो सब तो वी सो ओल्ड ऑल्सो ना. आई थिंक फ्रॉम वुमेन पर्सपेक्टिव थोड़ा सेफ्टी का भी तो तुम्हें दिमाग में बार बार सोचना ही पड़ता है. और I guess that is part of your like thought process by default. तो हाँ ये correct beyond the point कि आज दिन भर में क्या करना है that would be open. यहाँ से निकलते टाइम तो मेरा पूरा plan set रहता है. Yeah. What is the most well planned trip you've made? Most well planned. Where you were like, wow, kill हो गया, सब कुछ execute हो गया, जो मैंने Excel sheet बनाई थी, सारे KPI meet हो गए मेरे. चेक ऐसे में सारी ट्रिप्स में गाइस मैं वही करूँ कि इट्स रेयर बट इट्स ऑलवेज अ सिक्सर के गलत है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है गाइस. और फिर जज करना भी अकेले मुझे होता है. सोलो ट्रिप क्या प्लान किया कर रही हूँ मैं ही, एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं ही. ये तो मेरा लाइफ का है कि फॉर लाइक द रेसिपी टू सक्सेसफुल ट्रिप्स इज गो अलोन. लाइक जस्ट ऐसे बच्चे माँ बाप के सपनों में आते हैं. इंजीनियर है, MBA है, सारा कुछ प्लान करके चलती है और जो करती है वो बिल्कुल ठीक करती है. अकेले करते हैं. हाँ, Very nice, good idea. But मेरा तो मतलब I don't have a choice because I'm a father. So when you have to plan a vacation, I have to plan everything. But within the vacation, it's like most of the time our family is like सुबह नहीं उठना. सुबह नहीं उठना. कोई वो नहीं करना कि जी जैसे आपने हमें आज उठा दिया ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए सुबह 9 बजे. आपके खुद के घर वाले मना कर देते हैं आपको, हम यहाँ कंटेंट बना रहे हैं. मैं 9:20 को यहाँ पे आया हुआ था. मैं तो वेदांग को मैसेज करना था, उसने कहा था रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे. कहाँ है तू बे? कि 9 बजे मुझे रिपोर्टिंग टाइम बोल के तू नहीं है क्या? चल घर वाले उठे उससे पहले निपटा आता हूँ मैं. हाँ तो सानवी को उठने से पहले निपट जाएगा ये मोस्ट प्रोबेबली. उसकी छुट्टियां चल रही है ना, तो वो दोपहर को 1:30 बजे घर जाके टंडन को सानवी का वीडियो भी रिजेक्ट करता है कि नहीं नो दिस इज. But don't you have to factor in like 3 other people's this thing of we have to go here, we have to go here? यार कैसे must करते be हैं? crazy. बहुत ही मुश्किल Like I've stopped traveling with people because of that. तो इस बार का वेकेशन हमारा खराब गया because this time I planned like planned in the sense that we were going to Turkey. So my thing was and I had been to Istanbul for 1 day earlier कि मेरा एक flight miss हुआ तो because of that. So I felt कि वहाँ पे language का issue है. So what I did was that this time, first time in my life, I took a plan. Earlier what I would do is that I would book the
hotels myself. I would do that Correct. research. It should be centrally located. Correct. Because my family is awake till 2 o'clock in the morning. तो रात को 11:30 भी नीचे निकले तो it should be Something to safe. do. हाँ, there should be something to do. तो last time when we went न्यूयॉर्क गए, हम वेगस गए और लाइक LA में मैंने इतनी मुश्किल से ऐसी जगह ढूंढी थी जहाँ रात को 11 बजे भी सेफ है रात को निकलना, हाँ, very rare. एंड पीपल आर देयर, यू नो. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. इस बार टर्की में क्या हुआ कि वो पैकेज लिया कि वहाँ लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, और वहाँ मैंने सुना हुआ है कि टैक्सी वैक्सी वाले लूट भी लेते हैं, तो उनको पैसे पैकेज ज्यादा like you had a लगा. guide all through or Yeah, so every place we had a guide. So I booked it from here. तो hotels और everything stay, and अभी तो उसने बहुत ज़्यादा पैकेज करके दिया कि एक दिन ये है, एक दिन ये है, एक दिन ये है. And then I told him कि भाई हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम रोज घूमने वाले नहीं हैं, हमारे घर वाले थक जाते हैं. हमें वो नहीं है कि जी वो देयर इज दिस पैकेज कॉल्ड 678. ठीक है, जो जैसे मेरे पेरेंट्स गए थे 15 दिन के लिए, 678 का पैकेज क्या होता है यूरोप का, कि सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे खाने के लिए पहुंच जाओ, 8 बजे बस में बैठ जाओ. दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड 678. So 8 o'clock you should be in the bus. Then the entire day you go around in the bus. सारा शहर तुम खिड़कियों से ही देखते हो, 4 जगह रुकते हो, वहाँ सामान लिया वापस, यू नो, या फोटो खिंचवाई, वापस चढ़ गए. Which works great for older people, I think, because you know they've never traveled too much, so they are not you know, the kind of people who can go alone around and you know. I'm not sure if explore. it works best for older people, but it's just that what has been sold to them also कि ये तरीका है कि तुम जाओ और जगह जगह देख लो. मे बी वो भी रिलैक्स करके आराम से, उनको तो यार ज्यादा थकान हो जा रही है. नहीं, उनका प्रॉब्लम पता है क्या है यार? एट द एज ऑफ 75, यू नो, इवन इफ दे आर इन लंडन फॉर एग्जांपल, they don't want to look for taxis, nor do they want to take the tube. They have no idea. ठीक है, they can't do that. Okay, for them food is another issue. इसमें पैकेज में फूड भी इंक्लूडेड होता है कि जी तीनों टाइम इंडियन खाना खिलाएंगे. अब मम्मी को वेजिटेरियन खाना, बाहर कहीं भी वेजिटेरियन ढंगा मिलेगा ही नहीं तुमको. There is no vegetarian food except for boiled vegetables. फनी है जो उनको बेचा जाएगा, वो हम लोग को ट्रैवल करते, मुझे जाके इंडियन खाना थोड़ी खाना है. और इट्स वियर्ड आल्सो बिकॉज व्हेन यू आर लाइक गोइंग, बहुत लोग बोलते हैं आपको इंडियन खाना खाना, आपको इंडियन. अरे भाई मैं इंडिया से आके लंदन में अभी इंडियन खाना तो मेरे को तो मतलब अगर क्रेविंग होगी चलो अलग बात है, बट ऑब्वियसली मैं तो इधर का ही खाना चाहूंगा, एटलीस्ट फॉर अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग. सो वो वियर्ड ही है कि हाउ द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम आर प्रीटी मच द टर्न ऑफ्स फॉर यू कि ये तो नहीं करना तो है. जैसे हम वो ट्रिप नहीं कर सकते, बट दिस टाइम वी हैड टू डू इट बिकॉज लाइक, तो उसका मैंने पैकेज थोड़ा कम भी करवाया. स्टिल 2 days वी हैड प्री बुक्ड, यू नो, एडवांस पेड पीसेस विच वी डिडंट गो फॉर कि नहीं भाई ये नहीं करना है, अब हम थके हुए हैं, हमने सुबह 8:30 बजे जाके. बट आपका तो ट्रिप इसलिए भी खराब थोड़ा हुआ ना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी. ये टाइम में आपने बहुत थोड़ा गलत ले लिया कि जाने का. 42-43 डिग्री टेम्परेचर, सारा दिन सबकी शक्लें बनी हुई कि हम कहाँ इतनी गर्मी. और वो कैपिटो के एंड ऑफ द डे वो डिजर्ट ही फीलिंग है, तो उसमें ऐसा उस टाइम पे गर्मी में तो बहुत हालत खस्ती हो रही होगी आपको. And we were in a cave hotel, so our room was like a cave, so there was no air conditioning in the room. There was a dehumidifier. Stones. क्योंकि मैंने सेम किया है. you did? And I did, and I had a wonderful time. So in the same cave hotel ही मेरा तो बेस्ट टाइम. मैं सोच रहा हूँ कि क्या मजा आ रहा है, क्या बढ़िया केव होटल है, इधर जा रहे हैं ऐसे क्यों अंडरग्राउंड रहते केव्स सब कर रहे हैं, लोग? क्या मस्त है, क्योंकि अब 18 डिग्री है और 19 डिग्री है और वो बहुत डिफरेंस हो जाता है ना उसमें. No, Cappadocia was cold in the night. Cappadocia we had good time because we were able to do hot air balloon also. But most of it otherwise was like, अरे यार ये इतना डिसिप्लिन वाला टूर नहीं करना है घर वालों को. बट बाकी मैं टूर पे जाता हूँ ना, मैं उन तीनों के हिसाब से प्लान करता हूँ, अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि पापा अपने को तो घूमने का मौका मिल ही रहा है यार. Sometimes the things that these guys sell us also, तो कैपिडोकिया में ही वो जब ले जा रहे हैं अलग अलग एक स्पॉट पे ले गए जहाँ पे बहुत सारे पिजन्स है कि दिस अ स्पॉट की पिजन्स देखना है. यार गोरों को वो देखना अलग होगा, मैं पिजन से ही भाग के आ रहा हूँ. मेरे यहाँ पे इंडिया में साला हर दिन गुटरगू करे जा रहे हैं, वो एसी के ऊपर मैं साफ कर रहा हूँ बैठ के, मैं वही ट्रॉमा छोड़ने के लिए भाग के बुलाने के लिए तो आया. यहाँ पर भी कबूतर ही देखूँ तो इट जस्ट लिटिल इरिटेटिंग. वो तो एक वो होता है जो तुमको एक ऐसी जगह ले जाते हैं ना कि यहाँ पे हमारे लोकल जो कलाकार हैं ये बनाते हैं सामान, इसको इस प्लेट को बनाने में 15 दिन लगते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर इस पे पेंट लगाते हैं. ठीक है, और वो तुम प्लेट देख रहे हो, तुमको दिख रहा है ये दिल्ली में रेड लाइट पे मिलती है, वहां पे 150 रुपए की सेम गमला मिल रहा है 150 रुपए इस में. देश ने हमारा ना पूरा एक्सपेक्टेशन सेटिंग ही डिस्ट्रॉय When we had gone for Veer's wedding, no? After Veer's wedding in Sri Lanka, we stayed back for 2-3 days. So one of those days, I was like, let me do a day trip. So now I and my guide, I was like, listen, man, I need to use the loo.
ठीक है, so the guy is like, oh shit, there's no loo here for the next like 5-10 kilometers. Let me figure something. उसने एक आध कुछ फोन किया, कहता रास्ते में ना एक स्पाइस गार्डन है, just pretend as if you're interested in taking a tour और वहाँ पे आप loo use कर लेना. मैंने कहा ठीक है, very good, what a great guide. अब वो हम वहाँ आए हैं और वो स्पाइस गार्डन वाला वो श्रीलंकन बंदा मुझे टूर दे रहा है, and he also I think he guessed that I have no to give because everything is like, these are chilies you have in India. This is black pepper you have in India. But आज रास्ते डिमोटिवेट हो गया कि भाई तेरे वहाँ भी तो यही हल्दी लगी हुई है. मतलब can I use the loo? He said yes. भाई मुफ्त में जाना है. You don't have that in India. नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है टॉयलेट्स लगाने वाला, बट दैट वाज like वो मेरे को that was one of the best guides because he was like, let us actively participate in a scam just so that I can use the loo. अब वो बहुत he went above and beyond the call of duty literally. बट ये सब बहुत सारी चीजें which will be white people के लिए Will love it. केटरिंग है, क्योंकि हाँ. मेरे को भी श्रीलंका में वो हाथी दिखाने बार दिखा रहे, अरे मैं क्या हाथी देखूं यार, मेरे कभी साइड से हाथी गए तो मतलब इसका भाई है रैम्बो सर्कस में काम करता है, मैं जानता हूँ. yeah, it's just catering to. हाँ नहीं, वो तो देखो, अब तुम श्रीलंका जा रहे हो तो स्पाइस गार्डन तो तुम नहीं जाओगे, बट ठीक है, कुछ नहीं होता. पर I have a pretend किया. loo story. For श्रीलंका. नहीं. In London. So London, I am like, देश जाते नहीं सर. I like to walk, so I'm like, कहीं टैक्सी नहीं लेना है within, because it's such मगिंग का शौक है walking. आपको, मगिंग और नहीं, तब अभी knife मगिंग crime. वगिंग नहीं शुरू हुआ था. अच्छा. एंड 3 साल पहले की बात है, तब ये सब नहीं था. इट वाज नॉट अनसेफ 3 years ago. Sir, मैं तो सर 3-4 years ago. 6 महीने पहले भी गया हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया कि इतना, मतलब ऑल्सो तुम न्यूज़पेपर्स इसमें पढ़ते रहते हो कि अनसेफ हो गया, ये हो गया, वो गया, मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा था यार. नहीं ऑक्सफोर्ड आई स्ट्रीट, डोंट नो, हैव रेफरेंस फ्रॉम पहले का अभी क्या है, बट नहीं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लोगों ने मुझे टोका है 3-4 बार फोन कि मत फोन लेके जो चलो. है अंदर वाली जेब में रखो. मुझे 4 लोगों ने एज टोका है. अपोज टू अदरवाइज अगर तुम्हारी पिछली जेब में फोन है या तुम्हारे हाथ में है ना, दे स्नैच इट. Yeah. सो इट्स बिकम वेरी कॉमन. मैंने तो देखा भी है बाइक पे एकदम वो काले काले कपड़े पहन के जाते इन हुए. लंदन यू सीइंग, बिकॉज़ हाँ. मैं Central London. ये सब इन सब में सीन वहाँ है, तो वो है तो ही. बहुत ज्यादा It's a है. new thing. सेंट्रल लंदन, इट्स अ वेरी न्यू थिंग. लास्ट 1 year तुम वहाँ आगे जाओगे, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से आगे वहाँ उस एरिया में जाओगे तो वहाँ पे पुलिस वालों ने भी बड़े बड़े वो बैनर लगा रखे हैं कि फोन स्नैचिंग इज वेरी कॉमन, बी केयरफुल अबाउट योर बिलोंगिंग. एंड दैट्स लास्ट 1 year. मैंने अपने ऑर्गेनाइजर से सुना, उसका कोई फ्रेंड था, मस्ट बी अ रिच गाय, उसने महंगी घड़ी पहनी हुई थी. दे जस्ट केम एंड चाकू दिखाया और अब वो आते भी वो जोमेटो वाले ईवी पे हैं, आवाज भी नहीं आती कब से, हाँ. सीधा पीछे. मजाक नहीं कर रहा मैं. हाँ, साउंड पहले तो पता चल जाता था आ रहा है कोई बंदा भाग के आ रहा है कुछ. वो बहुत क्विक हो गया. अरे सच बोल रहा हूँ यार, तो मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना सच है, बता रहा हूँ. मग कर रहा है और ईवी पे भी देखो आ रहा है. वो गोरा चोर है, उसको एनवायरनमेंट की परवाह है. ठीक है, वो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है कि वो नया फोन नहीं खरीदेगा, वो तुम्हारा चुरा है. वो रॉबिन हुड है तुम भाई. सीखो उससे. हाँ. अनप्लान ट्रैवल कभी करा है? मेरे ख्याल में मैंने नहीं करा है. मेरा ट्रैवलिंग का क्या रहता है कि बिकॉज अदरवाइज ऑब्वियसली ज़्यादातर मेरा ट्रैवल निधि के साथ ही जो भी हुआ है. एंड तो बिकॉज नॉर्मल लाइफ में निधि इज़ अ वेरी मेटिकुलस ये वो थिंग. सो इन ट्रैवल वाइल वी आर ट्रैवलिंग, वाइल वी आर आउट, शी जस्ट लूजन्स अप, वो बिल्कुल फ्री रहती है. तो मैं ही बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है. वो बिल्कुल जस्ट गोइंग विद द वाइब, तुम जहाँ बोल रहे हो मैं वहाँ पर ही होगी. सो शी जस्ट इज़ अ वेरी रिलैक्स चिल वो. और मैं काफ़ी ज़्यादा प्लान करके ही रखता हूँ. मुझे हर दिन ही कुछ ना कुछ एंगेज, मतलब मैं जैसे मैं वॉकिंग टूर्स बहुत करता हूँ पागलों की तरह, अलग 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 और ऑप्शंस भी बहुत होते हैं. तुम अभी लंदन में जैक द रिपर वॉकिंग टूर एक है, एक ये वॉकिंग टूर, एक वो है, अलग अलग हिस्टोरिकल का है उसका है. सो वॉकिंग टूर्स इज अ फन, वेरी फन एक्सपीरियंस. एंड तो वो मैं जैक द रिपर वॉकिंग टूर में एंड में मर्डर ना हो तो मजा क्या. कि 12 दिन चले विक्टिम्स के स्पॉट्स दिखा रहे, यहाँ ये पहला मर्डर हुआ, यहाँ ये वो, साथ में उधर का सोशो कल्चरल टाइम्स का वो बता रहे कि व्हाट परसुएडेड, व्हाट हैपेंड. वाज इट्स अ लॉट ऑफ फन टू हैव दीस. यही इंडिया पीछे रह गया है. यहाँ पे कितना कर सकते हो आप दिल्ली में. तुम लेके जाओगे यहाँ 10 लोग टंगे थे, ये देखो वहाँ पे बुरारी वगैरह ले जाओ यार, कुछ निठारी लेके जाओ. ये ना अंग्रेज लोग ही कर सकते हैं. छोटे बच्चे बाहर दिख रहे. मिठाई की दुकान में नाम लग रहा है. अंग्रेज लोगों ने हर चीज में मौत तक बेच दी है. इन्होंने हर चीज बेच दी अरे है. उनका इतना बढ़िया, मैं हर चीज वहाँ क्या बोलते हैं, रोम, इटली में, रोम में जब हम थे,
मजाक बना दिया था यार, इतना फालतू का ओवर सेलिंग करके हर पत्थर को बोल रहे दिस इज हिस्टोरिक पत्थर, दिस इज ये पत्थर, दिस इज ये नीरो सैट ऑन दिस पत्थर। अरे कुछ नहीं है यार, बस पत्थर है। वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग उन्होंने इतना करके रखा है ना हर चीज का। The weirdest एक्सेंट thing किया, that I इटालियन saw. एक्सेंट लग नहीं रहा था नहीं, मुझे। हिंदी में ही बोल रहा था but, The weirdest thing that I saw was where I was like, ये ज़्यादा commercialism हो गया. I was in DC and there is a Holocaust museum. और उसकी souvenir shop है. Nice, of course. Why not? For the Holocaust museum, they have a souvenir shop कि अब देख लिया, अब $50 की टोपी खरीद लो. It's and I'm like, मत बनाओ यार इससे. It's like ये स्मिथ कर चुकी है एक्सीडेंटली एम्स्टरडेम में। हम जे जाना था एन फ्रैंक म्यूजियम, तो बाहर हम रियलाइज नहीं करे कि हम पास में पहुंच गए एंड शी इज लाइक ओ पीछे देयर इज अ फकिंग पुतला है एंड मैं स्टैचू के साथ एक ऐसे सैड सेल्फी लेती हूँ, तो वो ना ऐसे मुंह बना रही करके और पीछे पुतला। आई वाज लाइक ब्रो इट्स Anne Frank statue. You can't be taking a selfie with Anne Frank statue. And she felt so guilty. I was like, oh. तो सैड फेस ऐसे ही था उसका। हाँ, do it unintentionally. unintentionally hilarious. हाँ, क्योंकि उसे लग रही थी ठंड वहां पे, तो शी वॉज मेकिंग सैड फेस कि कहाँ गए, ठीक है, तो उसने करके मुंह बनाया, पीछे स्टैचू है, निकला एन फ्रैंक, शी इज फीलिंग गिल्टी। मैं कहा गोरे मारेंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब है। शिट। देन वी वेंट इनसाइड द म्यूजियम एंड शी इज इमोशनल। तो वो निकल के आई है एन फ्रैंक म्यूजियम से बिल्कुल आंसू, ठीक है। अब लाइक अब देखो बाहर तुम सैड सेल्फी खींच रहे थे, बट अब देखो गोरों की स्ट्रेटजी। जैसे तुम एन फ्रैंक म्यूजियम से निकलते हो, बगल में उन्होंने पैनकेक शॉप खोल के रखी हुई है कि जो ही रोंदू बंदा आए वहां पे आधे लोग बस रो के सीधा न्यूटेला पैनकेक पकड़ा दो हमें ठीक करने के लिए। ये है स्ट्रेटजी। अब जैसे मिठारी वाले घर के बगल में अगर कोई आरी की दुकान ना हो तो खराब, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग आरी की दुकान ही मिली तुझे साले, मतलब कंफर्ट के लिए एग्जांपल में वहां पे मिठाई की दुकान, यहाँ आ रही सीधा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उससे रिलेटेड, जैसे अमित सर बोल रहे थे हॉलोकॉस्ट सोवेनियर, वहां पे यार तुम आई थिंक मसाजर या सेकने वाली चीजें होनी चाहिए, करेक्ट, कॉन्ट्रास्ट करने। यस एंड करो यार गाइस। बट ये है बाहर, that's something that the influencers have, you know, also spoiled big time. Like I've seen, there is zero sense about where you are. अरे तो you मैं know? अभी like पौंडीचेरी, ये तो इश्मीत को पता नहीं, ठीक है, बर्लिन में जहाँ पे वो मेमोरियल है, ठीक है, या 9/11 मेमोरियल, आई हैव सीन पीपल मेकिंग रील्स एंड पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक कहीं यहाँ तक तो हाथ जाता होगा। नेक्स्ट पर्ची अभिजीत, हमने डिस्कस किया कि हमने स्ट्रक्चर करी कि नहीं। चल छोड़, क्या छट सॉरी माय ब्रेन इज बाउंसिंग, माय बैड। चलो लेट्स गो। क्या निकला है? Oh yeah, nice. Very food. Do you explore local cuisine or crave Indian cuisine there? पहले 4 दिन एक्सप्लोरेशन, उसके बाद क्रेविंग। नहीं, मेरा तो देखो, जैसे जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं तो बहुत, फूड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा देख के भी कि इधर ये खाना, इधर ये खाना, इधर का ये है। मैं स्ट्रीट फूड के बहुत सारे वीडियोस देख के, एटलीस्ट रिसेंटली लास्ट 5-6 साल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तो बहुत होता है कि वहाँ का लोकल, और मैं खाता भी काफ़ी, मैं मतलब सब कुछ ही खाता हूँ काफ़ी, मीट ईटिंग में भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लोकल फूड। बट हाँ, बीच उसके बाद जब एक इंडियन कुछ मिलता है तो बुरा तो नहीं लगता, अच्छा लगता है कि यार देसी चाय मिल गई अचानक से, और वो सब भी। व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग यू ईटन? आई हैव ईटन टू मेनी थिंग्स ब्रो। No, तो नेम। नहीं तो मतलब Weird shit, like which you didn't expect to eat. आई मतलब रैबिट तो खाई है, फ्रॉग भी खाया है। आई डिड नॉट। What did you enjoy or did not enjoy? Like what was frog like? Frog tasted a lot like chicken. Chicken, no? Chicken. Frog tasted a lot like chicken. अभी मैं recently केन्या गया था, तो मेरे को मन था वहाँ पर एक कार्निवोर करके रेस्टोरेंट जहाँ पे where you can have alligator meat. तो मेरे को एक वो खाना था, क्योंकि एक जैसे वो लगता है ना, तो फूड चेन के टॉप से तुम ऊपर आ गए तो वो खाना था, बट वो मिस आउट हो गया क्योंकि तभी फ्लड्स हुए थे, तो साला रेस्टोरेंट में ही फ्लड्स हो गए। तो मेरा poor alligator भाग गए फ्लड में। एलिगेटर निकल गया पढ़ नहीं पाया फ्लड्स में। अरे कोई एलवी का बैग बुक चबा लेता बाहर जाके, वो सेम ही बनता। ठीक, नहीं इंटरेस्टिंग। बट अगर मेरे को वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स मैं बोलूँगा, फ्लोरेंस में एक दे मेक दिस, इट्स सो वियर्ड, साला बड़ा पाव जैसा ही है,
पाव ही है, पाव के अंदर दे मेक लैम्स समथिंग व्हिच इज कुक्ड ओवरनाइट, तो वो जो कीमा मतलब ये बैठे हो देन कीमा पाव, बहुत लैम्प्रोडेटो उसका कुछ नाम है, एंड इट इज सो गुड, तो वो तो मेरा दिमाग ही बढ़ गया था खाके, बट या You prefer exploring आई local cuisine? लोकल फूड, ठीक बात आप सही कह रहे हो कि 4-5 दिन बाद अचानक 4-5 दिन के बाद राजमा चावल एक्चुअली मुझे तो वो भी नहीं होता, लाइक मैं बाहर जाती हूँ, लाइक आई थिंक आई नो दिस बिकॉज आई हैव डन वेरी बोरिंग, लेकिन ना बोरिंग तो नहीं, बट ऐसे एडिनबरा फेस्टिवल देखने गए 20 दिन वहाँ पे हैं और खाना अब रिपीट ही हो रहा है, बिकॉज लाइक एडिनबरा इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट यू कैन एक्सप्लोर लॉट ऑफ फूड, एंड आई गॉन विद उरूज द फर्स्ट टाइम वी गॉन टुगेदर, तो उसको 4-5 दिन में था कि अब चलेंगे इंडियन खा लें, मैंने कहा नो ये वाला काम तुम अकेले कर लो, आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर बट एट द सेम आई जस्ट फील लाइक आई एम अ वाइट पर्सन, आई फॉरगेट सेंटेंस ऑफ द पॉडकास्ट हमें मिल गया क्लिकबेट थंबनेल। आई रियली फॉरगेट थंबनेल में प्रशस्ति बोलते खाली तेरे को मैं खा लेती हूँ, मुझे पच भी जाता है, और मैं सही में भूल जाती हूँ कि मैं ब्राउन हूँ, लाइक आई एम टेलिंग यू कि व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अलोन तो खासकर होता है कि मैं एयरपोर्ट पे ना like I'm having a good time having coffee and then I go to buy something to eat और लाइन में भूल जाती हूँ कि मैं कैसे बात करती हूँ, और जैसे मैं अपना एक्सेंट सुनती हूँ ना मेरी फट जाती है कि I can't explain, okay? The out of body moment full happening. मेरा body language, confidence सब एकदम उन लोग के बराबर हो जाता है till I hear my voice I'm like oh this unique voice of mine. ये इतना खराब होता है ना कि गोरो का ना ज्यादातर ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाता है उनका, तो when they are in their 20s 21 उसमें, हम सब की जिंदगी का ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये मोस्टली 27-28 के बाद ही है, अभी फिर भी ट्रेंड चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, अर्ली एज पे भी पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग, बट हम सब मतलब पहले तो अप्पू घर और माउंट आबू ही होता था। हॉस्टल में रह रहे, अगर हम भी जाके अगर कोई रह रहे तो वो, बट जो बाकी जो गोरे वोरे रह रहे वो 22-23 साल के हैं, तुम अचानक से 28-29-30 के पास जाके वहां पर रह रहे हो, तो हाँ वो तो मैं देख रही हूँ अंकल आप क्या कर रहे हो हॉस्टल में, आपके दिन तो गए अब यार, क्या कर रहे हो? Indian dude, middle life crisis. हाँ करेक्ट। I look for places to eat, but what I like to do more is I like to just walk on the street and see what is available. I don't like go for famous places कि इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है. I would generally be like on the streets, चल रहे हैं, अच्छा वहाँ वो स्ट्रॉबेरीज बड़ी अच्छी लग रही हैं, वो चॉकलेट डिप, चल ये खा लेते हैं, फिर उसकी खुशबू अच्छी लग रही है, वो खा लिया. I find the best food outside of Indian food, you know, 4-5 दिन बाद Indian food, best food is farmers market food. हाँ, it's very nice. फार्मर्स मार्केट में जो खाना मिलता है ना वो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, वो वहीं वो तंबू लगा के वो वहीं बना रहे होते हैं. वहाँ की बीजियां बना रही होती हैं सुबह उठ के 5:30 बजे. वो सारे भी अब ना बहुत ज्यादा, बिकॉज इतना वही बात है ना, सारे इन्फ्लुएंसर्स व्लॉग बना के वो खराब हो जाते हैं, वो मार्केट इतना ज्यादा हो गया कि बहुत टूरिस्टी हो गया, तो वो भी उनका भी क्वालिटी डिप आ गया है. लाइक द बरो एंड ऑल, जो लंदन में भी आप वो फार्मर्स मार्केट जो फेमस है उनका, वो लोग खुद ही अब बोल रहे हैं कि क्वालिटी हैज कम डाउन एंड बिकम वेरी टूरिस्टी. बट बरोज में अच्छा मिल जाता. बेस्ट एक्सपीरियंस इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, I still remember, I think first tour 2018 I was in US. जब मैं वेस्ट कोस्ट कर रहा था तो वहाँ पे मुझे शहर भी नहीं याद, वहाँ शहर में थे हम, तो वहाँ से फ़्लाइट लेनी थी एंड फ्लाइट थोड़ी 11-12 बजे की थी. तो मैंने कहा यार नाश्ता करते हैं एंड आई वॉन्ट टू हैव इंडियन फूड, ठीक है. एंड गूगल मैप्स पे कहीं ढूंढा एंड इट वॉज अ वेरी लाइक वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ थोड़ा क्राइम है. यू कैन सी जब सो क्राइम इन्फेस्टेड एरिया, हाउ यू फिगर आउट देयर इज कि जहाँ पे खिड़कियों के आगे वो ग्रिल्स लगी होती हैं, करेक्ट, कांच के आगे ग्रिल लगी होती है. सो यू फिगर आउट जहाँ शॉप्स है ना, और शॉप्स में आगे ग्रिल लगी हुई है, उसके आगे कांच के आगे, यू नो दिस इज अ क्राइम इन्फेस्टेड एरिया. यहाँ इंडियन अंकल सुसु कर रहे हैं 1.5 लीटर पानी पीने के बाद. सो वहाँ पे एक ढूंढी जगह, वहाँ बाहर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, ठीक है. अंदर गए, there's a you know पंजाबी फैमिली, they're serving. मैंने कहते क्या लोगे, मैंने कहा क्या है, आलू का पराठा मिला. पहली बात तो पराठा नहीं मिलता है, यू नो, तुमको पराठा बाहर नहीं मिलता है. और वो आलू का पराठा इतना अमेजिंग खाया ना मैंने, इतना अमेजिंग खाया. एंड गंदी सी दुकान है, मतलब कोई 5 टेबल लगी हुई हैं, कुर्सियाँ पड़ी हैं, कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है. एंड देन आई हैड टू गो टू द लूज. आई सेड कैन आई यूज द टॉयलेट? ही सेड कि हाँ आप क्रॉस करके, किचन क्रॉस करने के बाद पीछे है. And I crossed the kitchen and his mother was making it. Exactly.
His mother was making it. So BG. मैंने क्या बोला था? वो Farmer जो market. मैंने वो पराठे खाए Where? यूएस में कहीं पे US में, था, अच्छा, यूएस में कहीं वेस्ट कोस्ट में था. इससे ये पता चलता है कि Best. इकोनॉमी इतनी खराब है कि 80 साल की औरतों को वहाँ पे भी काम करना पड़ रहा है. अभी यूएस में पराठे बनाने पड़ रहे हैं लोगों को सस्टेन करने के लिए. 80 साल के ऊपर वाले हाँ. चला रहे हैं तो इन्फ्लेशन इज ब्रूटल. बट वो उसका कोई वो नहीं है मतलब. बट अभी एक तो मैं जब मेरा तो ये मैं लंदन जब गया तो मेरा तो फर्स्ट ट्रिप टू लंदन, उसमें मेरे को लगा कि यार इंडियन खाने की तो मतलब कमी है ही नहीं वहाँ पे इतना, स्पेशली प्लेस लाइक हंसलव एंड ऑल दैट. उसमें तो मैं बोलूँगा नॉर्थ इंडियन के ऑप्शंस मुंबई से ज़्यादा है. मैं एक जगह पे इतने सारा देसी खाने का इतना ऑप्शन, मतलब एक तो छोटे छोटे आउटलेट जो होते हैं उसमें 4-5 अलग टाइप की बिरयानी दिख गई यार मुझे. और क्या जान लोगे यार, इतना इजीली तो नहीं मिल रहे वहाँ पे. सो चिकन टिक्का मसाला इज देयर लाइक अ नेशनल डिश. स्कैम है यार. No, I agree. No, so we do usually two types. One is you do go to a country where you know the food is not going to be great, but you go for the country. Usually, but we do also because we eat a lot. So we do a lot of food trips for specifically that reason. Like for example, abhi next week we're going to Bangkok again. Mostly it is to eat. So the Excel sheet of planning goes into that okay, we had to go to these places which we couldn't go last time. So this is for lunch, and then you pre-book your. Nice. That's all you do. क्योंकि then you reverse engineer the trip from food. कि यार ये दोपहर को बहुत हैवी हो जाएगा, तो इस बार कुछ नहीं करना, 3 घंटे आराम करना है, उसके बाद रात को निकलेंगे. तो वो then you know because you will get to eat what you had wanted to eat. But like when like Uzbekistan गया था मैं last, now that's a hard country from a food POV if you are vegetarian, for example. It is just not a cultural thing. Is your partner vegetarian? No. Okay. That helps a lot now, because if you are, I can't even like very weird thing to say, but I can't imagine being married to So yeah, same someone here. with different dietary preferences. नहीं, Nidhi is vegetarian, complete vegetarian. So is it hard for you to very hard plan? Very hard, and that's why like because अभी चलो मैं बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है लास्ट कुछ साल में, क्योंकि वीगन लोग आ गए. White people turning vegan has been the best thing for Indians. Because उससे पहले honestly speaking, like when you would go and you will keep asking, because obviously people who are pure like completely vegetarian, they are little वो certain होना चाहते कि vegetarian है ना, and that pisses them off a lot if somebody repeatedly asks. So they start doing the whole rolling of eyes and ये वो कि अरे इंडियन लोग आ गए ऐसे पूछे जा रहे वाला. तो निधि completely vegetarian to find it, मतलब she just has disgust around non-veg. उसका बहुत सीन होता है. तो पहले बहुत मुश्किल होता था, but अब thanks to the vegan culture फिर भी easily everybody understands what is vegetarian and also I that heard has a helped very us a lot. interesting story कि अब वो vegan बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा. तो जर्मनी में कहीं पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, उन्होंने लिख दिया we are completely vegan and doubled their prices. Because vegan is expensive and South Indian food is anyway vegan. Correct. That's hilarious. That's so funny. That's amazing. तो पहले vegan ही है, उसमें कुछ है ही नहीं. नारियल की चटनी है, सांबर है, ठीक है, सब कुछ सब vegan ही था, ऑलरेडी vegan था, और लेवल लगा के तुमने डबल कर दिया रेट. Correct. अब तुम We are 100% vegan. अंधेरी में साउथ इंडियन से डबल होगा ना बैंड्रा. इट्स द सेम लॉजिक, क्योंकि इट इज यू आर केटरिंग टू द क्लाइंटेल व्हिच इज यूज्ड टू पेइंग X benchmark minimum. Because vegan is still like, you know, a rich people thing. And second, the problem is that even when you go to a vegan, you know, even when you're eating vegan food, most of the time in Europe, it is being made in places which also have non-vegetarian Yeah, stuff. नहीं फर्क पड़ता ना. हाँ, वो हमारी तरह प्योरिटी से अप्रोच नहीं कर रहे ना. चलो तुम ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तुम वेजिटेरियन भी हो, तुम बाहर जाओ तो इतना तुम्हें थोड़ा बहुत तो काम डाउन करना पड़ेगा कि बर्तन नहीं ये वो एंड सेम जगह पे उतना नहीं, बट ऑप्शन ही पहले नहीं होता था. अब थैंक्स टू द वीगन थिंग. निधि मेरे को याद है बहुत साल पहले जब इटली गए थे उसको लिटरली जेलाटो पे ही जीना पड़ा था. तो अभी तो अचानक से हर जगह. तो तुम MTR नहीं लेके जाते? ये वही अब तब नहीं लेके गए थे. इस बार लंदन जाते वक्त लेके गए थे, जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कुछ चीज की, क्योंकि इतने ऑप्शंस मिले जा रहे थे. That's why Gujaratis are visionaries. वो अपना एक महीने का फाफड़ा खाकड़ा सब कुछ लेके जाते हैं. Because like I can understand if you are not getting vegetarian food, then you know why not carry your own. And MTR जिंदाबाद, वो इन्होंने जो बना दिए पैकेजेस. ब्रांड स्पॉन्सर. हाँ, नाम सुन के नहीं. बीप कर देंगे हम. But when you went to Uzbekistan, तो फिर कैसे? What did you guys do? No, so I went alone because that trip I wanted to do the country alone, and that was, I have no issues with meat, but you do get like, I got bored after like day 6. हाँ, तो horse meat and all भी काफी है. हाँ, so horse meat I had, which was okay. It was just a little saltier because that you get a little this thing. The day I was eating horse meat, I was not in the mood to eat it.
But then my host was making it for me. Then you can't be like, I don't want to. Then be like, okay, give. But like for there, because the major food group is shashlik and kebab and blah 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 and fruits, you don't have an option. Then day 6, you're just like, okay, I need to like shoot myself and do something else. Then you find that one expats where they go कि embassy के लोग कहाँ खाना खाते हैं, and then you find that restaurant that Goras go to and then pasta or some shit, like even if you don't like it. So that was good, but वही हो गया था वहाँ पे. Day 6 I was just like, okay, no more kebab, as delicious as it is. But also honestly that's also mindset, right? Like I didn't expect to make that a food trip. Like now if in Bangkok I like 6 places sucked and I'm like god damn it, like पूरा trip ही हमने ये सोच के करा था, we'll have fun with food. नहीं. Kamba, next chit, I think. एक चीज अगर खाने का ही वो करते कभी कभी आपको ये लगता है कि जैसे मतलब मुझे नहीं स्पेशली आई थिंक इट्स वेजिटेरियन पीपल का ज्यादा होता है कि वहां जाके खाते वक्त लगता है कि जैसे निधि बोले थी उधर से बेटर पिज्जा तो इंडिया में मिलता है. हाँ. तो इट्स अ वेरी थिंगली कि चीज का टेस्ट वहां का बट यू आर Develop नहीं है ना. दैट थिंग. तो अरे सोनल केचप मंगवा लेती है पिज्जा के साथ वहाँ पे, और उनको वो भी कंफ्यूज हो जाता है. वो तो वहाँ ओरेगानो नहीं मिलता, ओरेगानो नहीं As a मिलता. white woman. You don't relate to all this. Who are these plebs? The lack of taste is appalling. Okay, so my shit is, what do you enjoy the most? History, adventure, meeting people, or just chilling? I will start with you. What do you enjoy the most? History, adventure, Meeting people or just chilling? just chilling. ये पढ़ ले. हाँ नहीं मैं समझ गई. As a white woman, I want to give you the opportunity to read it also, just in case you don't understand our accent. I think it's a mix of most things in this. Okay, I think when history के लिए, if you are in a city where there's a lot of history, of course you enjoy history. Adventure. I think the only one thing I'm not, I'm not too keen on is adventure because, as I said, कि मेरा वो this is not my personality. Okay. Have you been forced to do a? Oh yeah, basically वो कॉलेज के बाद में कभी again कॉलेज और उसके आसपास के टाइम पे जब तुम थोड़े गरीब होते हो, you have to like go with people. So you have to accommodate their preferences. Okay. As your fellow white adventurous friends. यार वो लोग उन लोग का बिहेवियर ऐसे वो भी कहते ना कि मैं मेरी वाइफ वेज है, मैं आई हैव स्टॉप्ड अकोमोडेटिंग द एक्सटेंट कि अगर यू डोंट इवन ईट द सेम मीट एज मी, हमने कहा बे यार तो That is correct. हमने मुझे अभी रेड मीट खाना है, तुम फिर खा लो चिकन. सो माय पॉइंट बीइंग कि विद माय फ्रेंड्स माय एमबीए के बाद वाला जो ट्रिप होता है एक जो करते हैं लाइक मैंडेटरी, वी गॉन टू गोवा एंड उस पे And the thing is, I have a problem with confrontation also. So I was just so annoyed all the time because my best friend has the opposite personality. उसको रोज उठ के नया एडवेंचर करना होता है. Okay. Drag the entire. Okay, आज मूड कर रहा है कि हम ये करें. Okay. And we were a bunch of people जिसमें ना she was the alpha and all the other like people were like या इसने इतने जोर से बोल दिया कर लेते हैं. And I was like मुझे नहीं कर रहा है. Okay. So आज ये करेंगे. आज हमारा प्लान था साउथ गोवा जाने का, पर हम नॉर्थ गोवा जाएंगे और वहाँ पे जाके ना हम पानी में कुछ करेंगे या फिर एकदम अनप्लान्ड इस जगह पे जंगल में घुस जाएंगे. एंड आई रियली लाइक आई कुड नॉट फाइट इट, सो आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल ऑफ इट एंड देन आई वाज लाइक कभी दोबारा जिंदगी में नंबर में ब्लॉक कर दिया. बेस्ट फ्रेंड कि शी लाइक अ सिस्टर टू मी, बट मैंने कहा हम दोनों साथ में ट्रैवल कभी नहीं करेंगे. It's good. It's for the sake of the friendship. Yeah. It will survive. एक्चुअली दैट्स व्हाई दोस्तों के साथ अगर तुम सेम रूम में भी रहो ना 7-8 दिन के बाद, मतलब 7-8 दिन तो बहुत कम, बहुत ज्यादा हो गया. 2-3 दिन में दिमाग खपता है यार कि ये क्या, ये तो बहुत ही अजीब हो रहा है. I don't like traveling with anybody except for my family. करेक्ट. बट आप एक बात बताओ, मतलब जैसे पर्सनली मतलब हाउ श्योर आर यू अबाउट द सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग ऐसी चीजों पे करते वक्त, क्योंकि मतलब आई एम अज्यूमिंग आप रिसर्च करके जाओगे कि दिस हैज टू बी अ सेफ प्लेस, देन ओनली यू विल बी डूइंग. बिकॉज़ See, one, I will not like because I've heard of enough issues in India, I would not do it. Yeah. ठीक है, यहाँ मेजर प्रॉब्लम, और मैंने देखा है किस तरीके से करते हैं लोग. Life is an adventure here, guys. Life. And there बना रहे हो कुछ ऊपर से गिर सकता है गाइस. तो नया नहीं होना चाहिए. तो मैं ये पढ़ लेता हूँ कि कितना पुराना है, कितने सालों से वो लोग. So the one that I did, it was run by a company that runs all the bungees in New Zealand. And New Zealand has been known for it for a long time. हाँ. Yeah. तो
उन्होंने इतने सालों से कर रहे हैं और वो एक ही कंपनी है जो सारे मैनेज करती है. दे हैव सर्टेन सेफ्टी स्टैंडर्ड. दे विल नॉट लेट यू टेक वन एक्स्ट्रा स्टेप अनलेस एवरीथिंग इज टाइड अप. इवन देयर इंस्ट्रक्टर इज टाइड अप, so everything is taken care of that. But was Sonal cool with you doing it? Like, did you tell her? How did that वो go? कहती है वो तुमने करना अकेले करना तो कर लो, मेरे सामने मत करना. So you sent her the video after? हाँ, Oh shit. हाँ. Shit, I would shit my pants. Bold move, bro. Outstanding. तो मैं स्काई डाइविंग मैंने बहुत पहले करी हुई है. वो मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि जब मैंने करी थी माई सन वॉज एक्सपेक्टेड इन September एंड I did it in August. वाह. Then I came back. ये लॉजिक समझाओ जरा. हैं? ये लॉजिक मुझे लगा समझाओ. पता है, ऐसे पॉइंट करते मुझे लगा था लैंडिंग के बाद घुटने में लगी थी ऐसे. नहीं. बेसिकली क्या था कि आई हैड गॉन टू यूएस गया था, मैं कंपनी में जॉब करता था. तो वहाँ से हम लेक एल्सिनोर करके एक जगह है ऑरेंज काउंटी के पास, वहाँ गए थे. तो वहाँ से स्काई डाइविंग करने चले गए बिकॉज द ऑप्शन वॉज वी हैड अ कार, आई वॉज ड्राइविंग. तो ऑप्शन था कि या तो आगे कहीं और घूमने चले जाते हैं. मैंने कहा वो जो घूमने वाली जगह है वो तो टीवी पे भी दिख जाएंगी, एक्सपीरियंस कहीं और नहीं होगा. सो आई सेड लेट्स डू स्काई डाइविंग एंड वाज वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली एट दैट सैलरी. Of course. तो वहाँ गए, वहाँ करी. तो देयर इज समबडी हु इज टाइड अप टू योर बैक. सो इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग इट योरसेल्फ. जो वो फरहान अख्तर दिखा दिया वो नहीं होता है एक्चुअली. correct. पहली डाइव अकेले नहीं मारते, देयर समबडी टाइड टू यू. एंड माय थिंग वाज कि वो जिस प्लेन में जा रहे थे ना, तो वो उनका रोज का काम है, वो पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है, 20 लोग बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं और क्या चल रहा है, ये है वो है. एंड सडनली दे आर लाइक लेट्स स्टार्ट जंपिंग. कोई उल्टा जंप मार रहा है तुम्हारे आगे, कोई सीधा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 3 लोग हाथ पकड़ के कर रहे हैं. एंड यू लाइक अरे ये तो वैसे ही है, इतना कुछ खास है नहीं. सो व्हेन इट वाज माय टर्न देयर इज अ गाय टाइड अप टू माय बैक एंड दे सेड जंप. आई जंप्ड एंड देन आई रियलाइज कि नहीं ये गलती हो गई. क्योंकि इट्स लाइक Sunglasses पहने थे 12,000 नहीं, वो दूसरे ग्लासेस उन्होंने जो भी पहनाए हो, आंसू गिर रहे थे. सनग्लासेस तो 4 बार गिर जाते हुआ. तो उसमें क्या होता है कि यू जम्प्ड एट 12,000 feet. आई जम्प्ड एट 12,000 feet एंड देयर इज दिस अल्टीमीटर ऑन योर हैंड कि 6,000 फुट के बाद जाके पैराशूट खोलना है. हाँ. तो अभी 6,000 फुट तुम ऐसे गिर रहे हो बस लाइक अ स्टोन, और वो तुम्हारे पीछे बंधा हुआ है और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ क्योंकि मेरी जान निकल गई यार. मैं चिल्ला रहा हूँ और मैं सुन नहीं पा रहा अपने आप को. आई वॉज स्क्रीमिंग एंड आई कांट हियर माई सेल्फ एंड यू कैन लिटरली सी द लेक कमिंग अप लाइक दिस. मतलब इट्स बीन 20 years नाउ एंड आई स्टिल एग्जैक्टली रिमेंबर वॉट हैपन्ड. 6,000 फुट में लगातार देख रहा हूँ कब होगा 6,000 क्योंकि पहले खोलोगे तो उड़ जाएगा पैराशूट. 6,000 के बाद जाके फिर मैंने मारा कि हे भगवान खुल जाए सी, खड़ाक खुल गया. But then he has to steer you and bring you back. Why I didn't do it ever again was because a friend of mine was also there in my company who was doing it and he stayed there for a long time. He went for 3 more dives and then he told me that somebody died on that same airfield in a skydiving accident 2 months later. Told you after? I'm like, हाँ. तो मुझे ये पूछना है लेकिन कि अगर वो उसने नहीं बताया होता तो जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से आप दोबारा जाते करने के लिए was शायद मैं करता, बट देन व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि नाउ it's not just my life that is dependent upon me. There's a kid, there is my wife, they are all dependent. So it's not just कि I can take a decision. तो even looks like that life insurance के ad में होता है, तुम टर्म इंश्योरेंस कराना भूल गए. उसमें की शक्ल वो भी हो रहा दिख रही है मुझे तो. गाय डाइविंग करते हुए टपक गए. बताओ कितना इररिस्पांसिबल है. Worst thing that we did not realize would be an adventure was on our honeymoon. We went to Iceland. Iceland में वो कह रहे हैं one of the trips was take a horse on the volcanic ash fields and photo. And anyway in Iceland गजब खूबसूरत, कहीं कैमरा लगाओ, it is gorgeous. तो हमने कहा ठीक है, हमें लगा यहाँ बॉम्बे वाला होगा, वो एक आदमी घोड़ा पकड़ के तुम्हें चलाता होगा वहाँ पे 10 मिनट के लिए, उसके बाद दे देता होगा कि सर फोटो आ गया एश फील्ड पे. हाँ जी, ये मैं सोच रहा हूँ, ये स्मित और मैं सोच के पिट्ठू वाला भाई. वैष्णो देवी के बाद सीधा अभी आ रहे हो कि भाई कि 4 चने खिलाएगा और डन. हम वहां पहुंचे, वहां पे 10 लोग, हम एक्चुअल घोड़े, कहते चढ़ जाओ इन पे. हमने कहा क्या मतलब, हमें घोड़े चलाने नहीं आते. नहीं, यू सिट ऑन देम and the horses know how to go on the trail, so you get a sense of you're actually riding the horse. And they taught us 2 commands. If you put some hoe or something you did and you pulled them, so they would stop. They were like, this is the only command, the hoe command is the only command you need to know. Like okay, ठीक है, हाँ, very weird. शेविंग चल रही है. Yeah, sorry, my bad. ठीक है. अब इन्होंने और स्मिथ immediately what
जिसको हमें पकड़ेगा नहीं, तू क्यों लेके आया मेरे को घोड़े पसंद भी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और वो लगी हुई है कि आइसलैंडिक हॉर्सेस वी नेवर एक्सपोर्ट देम, लवली लावा फील्ड्स, ये वो। हमारे साथ 8 और गोरे, हमारी फटी हुई। नाउ वी आर ऑन द लावा फील्ड, एवरीथिंग ओके, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर पे हम चल रहे हैं, फोर्ट में आ रही है। मैं स्मिथ को कह रहा हूँ, देखा एवरीथिंग रिलैक्स, ऑल गुड। तभी बिकॉज अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया आइसलैंड में, वहां पे कोई साला बाइसिकल टूर चल रहा था। 4 घोड़े साइकिलों से घोड़े हुए पागल, क्योंकि भाई रेस, सारे घोड़े खुदा गवाह की तरफ ऐसे हो गए, ठीक है। रेफरेंस ब्रो। मेरे सामने 2 American tourists, out of them both of horses are gone. Smith's horse has gone. My horse is the 4th horse that has gone, trying to chase. Top of the lava fields, I see in front of me the American tourist fall, ठीक है, on the rocks. She's in pain. By the time I have time to register, I see Smith in front of me, and Smith, she doesn't weigh a lot. So I'm seeing her bouncing, okay, and I'm like, any moment she's gonna fall. She falls, and mentally I'm thinking, मैंने इसको दे दी spinal injury honeymoon पे, ये क्लार्क कैंट हो गया इसका, सुपरमैन वाला, फट गई। She falls, now I'm like, how do I drop? मेरी luckily कोई height advantage, मैं किसी तरह से ऐसे चलते घोड़े के ऊपर से की तरह एक लात फंस के मैं भी गिर गया हूँ। ये क्या, ये तो लंबे लोग जो स्प्लेंडर पे बोलते हैं, हाँ, वो वाला एग्जैक्टली दैट। पैरों से ब्रेक मारेंगे, एग्जैक्टली दैट, चल रहा है पैरों से ब्रेक मार के। एंड चौथा पीछे मैं देख रहा हूँ, 1 more person has fallen, ठीक है। अब गोरे की फटी हुई कि 4 एक्सीडेंट हो गए। एंड स्मिथ ऑफ कोर्स फुली लाइक ब्रोक डाउन, फुल ट्रॉमा। ऑब्वियसली मेरे को खुद पेन हो रही, समझ नहीं आ रही कि शिट क्या सीन है। सालों ने वापस डाला, हमें वापस लेके गए। लोग, यू नो, वी आर सो सॉरी, यू नो, दिस नेवर हैपेंस, बट दोस बाइसाइकिल, यू नो, वो ज्ञान दे रही है। और वहां पे स्मिथ फाइनली, तब तक टचवुड शी वाज ओके, बट दैट अमेरिकन टूरिस्ट ब्रोक हर रिब because she fell. So they took her to the hospital. We were and Smith obviously full trauma. और we were mentally, I'm thinking, ये TripAdvisor पे full refund मांगूंगा मैं for this. और वो आगे में बोल रही, this is a lucky horseshoe since you two have just been married. And Smith की शक्ल, कुत्ते, we almost killed us. We don't want fucking lucky horseshoe. What the यादगार भी दे रहा है। हाँ, मतलब द लास्ट थिंग यू वांट टू रिमेंबर। तो वो उसके बाद से, आई स्वेयर, जो फटी थी, she was anyway really pissed because we had gone in the winters. आइडिया किसका था ये करने का? ये आइडिया मेरा था। That changes everything. But the whole story changes. I just thought कि वो पकड़ के लेके जाएंगे। Then we sent them one long ass stinker, got the refund, this that, but that was like potential. That's the only potentially life threatening situation that's been in, because I will never forget like her falling. Absolutely, that's and those horses were fast as shit, man. And उनको cyclists को कुछ नहीं पता, वो निकल गए आगे जहाँ भी निकल रहे हैं। Adventure. One place you will never go back to and why? Oh shit, good question. You start. नेशनली करने हैं, डोमेस्टिक? कहीं भी डोमेस्टिक कर लो, नहीं तो ऐसा लगेगा ये 4 अमीर लोग मैच अपने पास इंटरनेशनल ट्रिप With the white lady. with the white lady With the white lady. talking about their pretentious trips. तू बता, तू शुरू कर। अरे मुझे सोचना पड़ेगा 1 मिनट, बिकॉज मैं थे कम मैं बताऊं? सोच क्वालिटी। मैं उत्तर बताता आप हूं। स्टार्ट करो। One place you will never go and why? कसौली। We had a terrible experience. अरे यार, अच्छी जगह है यार। मैं नहीं, but it's a haunted place. So the hotel that we stayed in was haunted. It was haunted. तो हम, मतलब तुम Explain. हाँ, थोड़ा तो बता। हाँ, ऐसे तो नहीं छोड़ तो ऊपर उन्होंने रिसेप्शन बनाई है। एंड देन यू नो, ये सड़क है, ऊपर रिसेप्शन है, नीचे उतर के कमरे हैं सारे, ठीक है। 7-8 कमरे लगातार हैं। तो जब हम, एक तो हम पहुंचे रात को, मैं और सोनल, तब बच्चे नहीं थे अभी, मैं और सोनल वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, सामने एक झोंपड़ी थी। एक तो उससे चिल्लाने की आवाज़ आ रही, गंदी, कोई रोशनी नहीं जल रही, कुछ नहीं, चिल्लाने की गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है एक औरत की, ठीक है। गुड चिल्लाना, बैड चिल्लाना? बैड चिल्लाना, जैसे इट्स लाइक ड्रंक वुमन, यू नो, एंड इंग्लिश, ठीक है। ये भी नहीं कि कोई ऐसी आवाज़, मतलब it can be wild murder but great also. Is my question was where I was getting at. फिर हम दोनों रात को और both सोए हैं, ठीक है। एंड बोथ ऑफ अस हैड द सेम ड्रीम दैट 2 hands are coming out of the, you know, the back of the bed and they are, you know, pulling us. Same dream. We both woke up at the same time, you know,
completely Yeah, covered in sweat. And then we looked at each other and when we told तो like यार सेम सपना यही मुझे भी आया कि बेड के पीछे से हाथ आ रहे Chills हैं और खाने मिलाया ऐसे खींच गए हैं तुमको दोनों को Just tells you are soulmates. That's a deeper. भाई उसके बाद मैं नहीं, मेरे कोई शौक नहीं है, मुझे फालतू का इतना एडवेंचर नहीं मतलब करना रुके फिर लाइफ भी में। रात को उधर ही हाँ रात को रुके, हम सारी रात जागते रहे। इट वाज एन ओल्ड होटल, वो बड़े बड़े कमरे पीछे। पाठ So this लगा is just you and Sonal, बच्चे नहीं हैं। नहीं बच्चे नहीं थे तब तो। नेवर गोइंग बैक एंड स्टेइंग ओवरनाइट इन सोलन। इनफैक्ट उसके बाद हम दोबारा भी गए ना सोलन, दिन में ही, मतलब चाचा जी वगैरह के साथ, क्योंकि फैमिली वहाँ चंडीगढ़ में है। वहाँ वी सॉ दिस गाय हु डिडंट हैव हाफ हिज फेस, लाइक दिस वाज ऑल स्किन। I saw and I just turned away. बैटमैन की शूटिंग एंड बाद में सोनल को भी मैंने बात करी तो कहती मैंने भी देखा था, मैंने भी वही अवॉइड करा कि वो और फटेगी हमारी। I have I think I enjoyed the experience going there once, but दोबारा नहीं जाऊंगी। Is Macau, and मैं वहाँ plan करके नहीं गई थी। It was a corporate show I went for, but I felt कि it's too artificial. Like it's too artificial. Completely agree. Completely agree. Again, food was good because you know authentic Chinese food. मैंने पहले कभी खाया नहीं था, इंडिया में खाया जो खाया है. So great, and you also feel correct. It is very authentic. कि जो आप लंदन में भी Chinese food खाते हो उससे भी like this. I know this is different, but beyond that, It's a very plastic city. too plastic. Too plastic. तो दुबई में भी फीलिंग नहीं आती। नहीं दुबई में होता है, दुबई में ढंग से करते हैं। हाँ, it was like you appreciate Dubai after going to Macau. You like, you know what? उनका ambition अच्छे से करिए इन लोगों ने। हाँ, exactly. It is the difference between जवान and पठान. You know, एक अच्छे से कर लिया उन्होंने, एक में मासी ही वैसे ही करना था बट हो नहीं पाया. I'll tell you the trying too difference. hard. You know, so what they've done is Macau has tried to copy Vegas. Yeah. They've tried to become Vegas. But Vegas is not Vegas just because of the buildings and lights. Correct. It's because of the people who come there. white people. Who want to have fun. My brethren. No. It's not the faces. Everyone It's not the comes, faces. It's what happens is, you know, when you see Chinese people, they are always on a mission. They're not there to enjoy. Like you see very different vibe. Case in point, Olympics going on, guys. No, it's like you can see the difference when it's, you know, when you go to Vegas, okay, or even in Dubai people live there also, okay. Yeah. So there's a certain vibe still in the evening. Daytime, the Dubai biggest problem is you can't step out in the afternoon. गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एयर कंडीशन ही है पूरा शहर, तो वो वाली लाइफ तो नहीं होगी. बट मकाओ और वेगस में मेन फर्क यही है कि मतलब मकाओ में ना हर कोई आके बस everybody is looking serious to you, you know. But is And it they like just- a place where mostly people are coming and going types, या रहने वाले लोग हैं? रहने वाले लोग नहीं है Just मकाओ. tourism mainly. वहाँ वो होटल जो Gambling है. काम करते हैं वही रहते हैं. गैम्बलिंग है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन है ऑब्वियसली, और शराब है. यही तीन चीजें हैं. Yeah. They're not crazy people. Like in Vegas, you find people who are dancing on the road, for example. You know, doing, you know, music चल रहा है. You go to Vibe old of Vegas. vibe हाँ, of it, हाँ, vibe ही Even नहीं है. उनका जो ओल्ड सिटी का पार्ट है, like ये जम नहीं रहा. It was supposed to be a Portuguese colony earlier, तो वो चेकआउट कर लेते हैं. वहाँ भी in order to what they've done this, the approach is so factory कि इसे जो Portuguese जो you know remains हैं, monuments हैं, उनको भी उन्होंने इतना white wash कर दिया है और इतना it's like a movie set. कि तो लग रहा है पोर्टुगीज, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? So ये अब समझ में आ रहा है ये. वास्को दा गामा खड़ा है साइड के साथ. तो या वो वाइब ऑफ है. एंड प्लस आई थिंक अनदर थिंग इज कि मकाओ एंड हांगकांग आर लाइक 1 hour अवे, बट हांगकांग जाते हैं ना AQI डेवलप्ड वर्ल्ड का हो जाता है. मकाओ इज एज पोल्यूटेड एज आर वर्ल्ड. ओके, लाइक वो चाइना का जो कंस्ट्रक्शन का पूरा सीन है, वही अब लग रहा है यहाँ भी आधी बनी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, हवा में धूल है. तो मैंने कहा ये मैं अभी भी ना इसको वो उसमें इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो एक्सेंट में कैसे बात करती होगी ये. नहीं, मैं एक्सेंट में बात नहीं, तो प्रॉब्लम एक्सेंट ही तो नहीं आ पाता कि जब मैं व्हाइट वुमन बन भी जाती हूँ ना, तब तक मैं चुप रहती, तभी तक बन पाती हूँ. मेरा मुंह खुलता है, मैं ही शॉक हो जाती हूँ कि ये क्या निकला. ये पता दूसरों की बेइज्जती होती है, हम अपने बारे में खुद नहीं कहते. ये लोग तो दूसरे लोग हमारे बारे में बोलते हैं, ये अपने खुद ही. एक्सेंट तो कहीं नहीं, वो नहीं कहते. वो मेरा ये जो चीज जो है ये एक approach. But accent actually, I have observed, I don't know why, a little bit of rolling of tongue starts happening when I'm out of India. लोग समझते ही नहीं है तुम्हारी, तो you start talking the way people will comprehend. So you
बट हाँ वो थोड़ा एक्सेंट चेंज हो ही जाता है, थोड़ा सा तो रोलिंग। हाँ, मेरा भी इंडिया में भी change आता है मेरा अगर तो। थोड़े दिन से हैदराबाद में रहता हो तो थोड़ा सा और मजा भी आता है वो लहजा में बोलने में, थोड़े दिन पंजाब में भी रहे तो थोड़ा वैसा वाला सीन तो मैं तो इतना पीपल प्लीजर पर्सनालिटी कि जब हम जो मेरी हॉरिबल गोवा ट्रिप थी ना, उसमें हम किसी तो नहीं, नीचे आंटी का वो घर है, ऊपर घर लिया हुआ है, तो मैं वो आंटी से ऐसे बात करने लगी। और मैं आई एम सो बैड एट कॉपिंग एक्सेंट्स, और ये आंटी हम लोग जाएंगा फिर आएंगा, मेरे दोस्त कह रहे कि ये घर में कैसा है? 90s बॉलीवुड गोवन पर्सन। मेरी तो कमाल हारिस पे यही तो कभी हाँ कभी ना। आंटी आप तो डिसूजा ही हो गए ना। आंटी हम लोग पाव गिटार का खाएंगे। कॉर्ड सिखा दो ना एक गिटार। 5 दिन मैंने से आंटी से कहा कि आंटी मेरा मुंह देखेंगी। Wait, yeah. So it happens. So I'm just thinking from tourism point of view, Yeah, which yeah. is place which has मैं तो ये disappointed extra फेंक रही me. थी। जो जगह disappoint बहुत ज्यादा की was Pondicherry. Like I just don't get the point of Pondicherry. मतलब बहुत ही पकाऊ जगह लगी, बहुत ही बोरिंग भी जगह लगी। तो मेरा दिमाग में अब हो ही गया काफी अलग अलग चीजें ट्राई करके। इंडिया में अगर आपको बीच वाला चिलिंग करनी है तो आप प्लीज चुपचाप गोवा ही जाओ, जैसा भी लगे, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा अपने वाइब के हिसाब से आप चुन लो, और कहीं नहीं इट्स अनोइंग ऐसा केरला इज प्रीटी गुड। या बट शराब तो पीना चाहिए ना, मैं बिना कप में ढूंढ छुपा के मैं बियर तो पी पाऊँ एक शाफ्ट पे बैठ के यार, मतलब वो तो मेरे को ऑप्शन दे दो। क्या पौंडीचेरी इज ड्राई? पौंडीचेरी तो ड्राई वाई जो छोड़ो, तो मैं केरला के बात कर रहा था, केरला में बिकॉज इट्स नॉट लेजेंड, बट पौंडीचेरी जस्ट वेरी ओवररेटेड, वेरी वो की है ना क्विंट फ्रेंच, एक पीला दीवार कर दिया, सभी उसी के अराउंड साला सेल्फी ले रहे, तुम खाना भी खाने जा रहे हो तो लोग साइड में आके तुम्हारे वो येलो दीवार के आस में लेते हैं। मोस्ट रिजर्वेशन यू हैव टू डू बहुत पहले 8-9 बजे तक सब बंद हो जाता है। आई जस्ट डिडंट गेट द पॉइंट ऑफ पौंडीचेरी। मतलब साला बीच में जाओ तो मछलियां मरी पड़ी है यार वहाँ पे बीच में, तो मतलब मेरा तो मूड ही खराब हो गया था पूरा उसमें। Probably us, I think. They're probably dead because of us. So I don't think they are actively seeking Fair. out to Pondicherry beach to die. fair, but I just did not. That just means the sanitation department has fewer employees. That just tells me that the city needs to invest in local governance. मुझे तो ऑरोविल भी जो टिपिकल वो होता है, क्योंकि अब मैं मतलब बट मेरा स्कूल जो दिल्ली मदर्स इंटरनेशनल स्कूल का पौंडीचेरी Yeah. आश्रम का उनका बहुत ज्यादा है, तो मेरे को तो वो सब भी बहुत ओवररेटेड लगता है, मेरे को तो बचपन से ही वो सब बहुत ज्यादा देखा है। तो वो तो ऑरोविल का भी बहुत ही Yeah. ओवरहाइप्ड कल्ट वाइब्स ही है वो Cult पूरा, vibes तो था। और बहुत ही वो फालतू का आप वो कर रहे हो। तो आई जस्ट डोंट, कामरा भी जाके पागल हो गया है पौंडीचेरी, तो मतलब I love that. Ganguly was like, ये मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ, फिर क्लोथिंग पंच मेरी की कामरा का भी दिमाग खराब हो गया, कामरा भी पागल हो गया पौंडीचेरी जाके, कामरा पागल हो गया। तो जनरली यार मेरे को तो समझ ही नहीं है, मतलब कि पौंडीचेरी का मुझे पॉइंट ही नहीं समझ आता कि क्या है क्या नहीं। जो लोग रहते हैं उधर, आई एम सॉरी, मतलब वो सुनने बुरा लग सकता है, बट ये एज ए टूरिज्म प्लेस आई जस्ट डिड नॉट गेट द होल पॉइंट ऑफ, ऐसा कुछ समझ ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, वेरी ओवर प्राइस्ड, वेरी एवरीथिंग। बट विद इन इंडिया लाइक बचपन में तो बहुत करें, बट विद इन इंडिया अदरवाइज मैं ज्यादा तो मेरे को गोवा ही प्रेफरेंस होती है। जैसे देसी की बात कर रहा है ना, गोवा का ये गोवा है कि आप गोवा हम लोग जो टेस्ट है वो धीरे धीरे साउथ की तरफ थोड़ा हम Yes. नॉर्थ कर्नाटका में ही आ जाएंगे कुछ दिन में, Yes, yes. कि वहीं घूमने जा रहे बुढ़ापे हैं। के साथ साथ आप साउथ आ ही जाते की हो। ज्यादा वो हो रहा है कि यार ऋषिकेश में मुझे सही लगता है। Fun था, ऋषिकेश हाँ व्हेन यू आर, time हो गया हाँ मुझे, but गंगा किनारे पे अगर तुम कहीं पर रुक रहे हो ना, आई रिमेम्बर द पहले होता था, अब तो वाइट सैंड बीचेस बचे ही नहीं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ ज़्यादा कैंपिंग वैम्पिंग इन्होंने छोड़ी है। बहुत बुरा हाल हो गया था बाद में, बिकॉज आई रिमेम्बर एक बार हम वाइट सैंड बीच पे रुके थे, तब बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था, एंड दिस इज 2005 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था कि साबुन से भी नहीं नहा सकते उसमें कैंप में। सो द टॉयलेट्स वर वो जो ईंट के बना के, एंड वहाँ पर रात को लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड रात को तुम बिल्कुल सिर्फ गंगा जी की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं है। Wow, nice. 4 years लेटर, क्योंकि वो टूरिज्म हो गया, वहीं पर ही हमने एक बार और गए थे, एंड वहाँ पे वही वाइट सैंड बीच पे सब कुछ है, अब रात को डीजे चल रहा है, that's so एंड दिस इज वाइल्ड लाइफ एरिया। that's so annoying. दैट्स द प्रॉब्लम कि कुछ भी थोड़ा सा एक्सप्लोर होता है तो वो इतना एक्सप्लोड हो जाता है ना। अभी वो बार्सिलोना में वो टूरिस्ट के ऊपर पिचकारियां मार रहे थे लोकल सिटीजन्स कि भाग जाओ यहाँ से, क्यों आए हो। वो तो वहाँ किराए बढ़ गए ना, किराए बढ़ गए, घर में खुद नहीं रह पा रहे, प्लस इरिटेशन भी तो होती होगी, हम ही एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं, तो वो तो इरिटेट होंगे, है ना। अगले पर्ची पे आए अभिजीत, चल तेरी बारी है। मेरी बड़ी होनी नहीं थी, चलो कोई नहीं, फिर चक्को की होया। Have you been scammed while on a trip? Nice. हाँ Perfect segue from the passport conversation, guys.
मेरे साथ स्कैम सोच रही हूँ आप बता दो, आप पहले तब आप आपके साथ कुछ तो हुआ, आपकी शक्ल पे दिख रहा है मुझे तो आप तब तक बता दो, बाकी सोच लेंगे। नहीं, स्कैम कोई मेजर वाला ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही बेसिकली ओवर चार्जिंग वाला ही काम हुआ है अभी आज तक। आई डोंट थिंक स्कैम एज सच हुआ है कुछ। मतलब यू फील चीटेड समटाइम, जो हमारे साथ टर्की में पहले 2 दिन इस्तांबुल में हुआ, बिकॉज वी हैड टेकन अ प्राइवेट टूर पैकेज, एंड उसमें इन्होंने हमें मतलब एक तो होटल वाहियात दे दिया, फिर उसके बाद जहाँ घुमाने लेके गए उसमें एक लंच इंक्लूडेड था, एंड दैट्स द शिटिएस्ट लंच दैट यू कैन हैव इन इस्तांबुल आई थिंक। सो दैट आई फिगर आउट लेटर ऑन, क्योंकि वो क्या था कि हमारे बहुत सारे वो थे प्राइवेट टूर से गाइडेड, वो गाइड इतनी गंदी जगह लेके गया ना, मतलब वो घटिया सा खाना, नोबडी एट एनीथिंग, एंड देन वी केम बैक। सो दैट डे आई आफ्टर दैट व्हाट आई डिड वाज दैट आई टॉक टू द गाइड, ठीक है, जो मुझे लेने जा रहा होता था, खाना लंच इंक्लूडेड है, कहता हाँ, मैं तू लंच का अपना बजट बता दे, उसके ऊपर के जितने होंगे मैं दूंगा, पर जाएंगे अच्छी जगह। But scam, I don't think. Like, Scam, मतलब see, As lot in of you- things we place on just bad decisions from ourselves. yeah, or we- like going, or overpaying for something which does not turn out to be as interesting as the pamphlet, Let's so to speak. That has happened in Goa with me a What? few times. These things ke it's not as interesting or as good as you know what you paid for. Yeah. That has happened कि वो बोट में लेके जा रहे हैं कि वो पैराशूट वाला करवाएंगे, ठीक है, एंड हम 4 जने थे, मैं सोनल नहीं, मैं मेरे फादर थे और साथ में 2 बच्चे थे, तो हम चारों ने करना था। वो बोट चल रही है, वो पैराशूट बस ये 10-15 मीटर ऊपर गया और वैसे का वैसे वो वापस ले। बोट आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? बोट नहीं यार, आई हैव डन इट इन मलेशिया, आई हैव डन इट इन डिफरेंट प्लेसेस, 15 मिनट दे रियली टेक यू अप, लाइक यू कैन see the entire island. That is how high the parachutes go when they take you in that boat. So it's not that I've not done it earlier. This was like just 15 meter and back. बिजली की तार तूर आ जाती है रास्ते में, कुछ इसके ऊपर कर नहीं सकते, चिड़ी चुड़ी लग गई आपको, फाइनल डेस्टिनेशन पतंग लग गई, पतंग मांझे से कट पड़ गए, कुछ भी हो सकता है भाई सर गोवा यहाँ। में मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे सेम फ्रेंड जिसकी मैं बिचिंग कर रही थी अभी यार आपका गोवा का ट्रिप बहुत ही खराब रहा था यार। not me, okay. आपका टर्की का ट्रिप और उनका गोवा का ट्रिप not me, okay, this Core is like, experiences. this is much recent, कि the same group of friends, and I'm like, नहीं, मेरा कोई शो था, I could not join them, and we've been friends for 10 years now, तो वो ना कि 2 साल में एक बार तो साथ में ट्रिप कर लेना चाहिए वाला ट्रिप था, and for some reason I was not part of it, but I'm on the same group, okay, so I'm seeing things, okay, वो ग्रुप की ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, फिर Airbnb बुक करना है, और सबके प्रेफरेंस, और अब सब लोग ग्लोबली अलग अलग जगह पे हैं, ओके, 2 लोग लक्समबर्ग में हैं, 2 लोग हैं, तो वहाँ से कोऑर्डिनेट करें अलग अलग टाइमिंग में, और 2 दिन 3 दिन टाइम लगा के ना इन्होंने ढूंढा एक बंगला ढूंढा, ओके, सबकी रिक्वायरमेंट्स की, बालकनी भी होनी चाहिए भाई, बीच भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और मेरे को देखा कि थैंक गॉड मैं मैं ट्रिप पे नहीं हूँ, बुक हो गया, फिर मैं भूल गई, वो ग्रुप साइलेंट हो गया। ट्रिप से 1 दिन पहले जो मेरी फ्रेंड है, मेरे पास बेस्ट फ्रेंड, वो कह रही गाइस आई थिंक हम स्कैम हो चुके हैं, और मुझे लगा कि दैट बुक थ्रू booking.com, एंड वो जो बुक कर रही थी, एंड मुझे लगा कि अलग अलग एरिया सब लोग टाइम जोन्स में हैं, तो व्हेन दे वर बुकिंग शी वाज लाइक कि मैं बुक कर दूं, फिर दे लाइक हाँ तू बुक कर दे, और आई थिंक मुझे बुकिंग हम कैसे स्कैम हुए? हाँ? नहीं। स्कैम हुई है। नहीं तो होता क्या ना कि booking.com पे apparently it's a full fledged scam, कोई नई प्रॉपर्टी लिस्ट करेंगे, and then when you're about to book, the person who has listed it, he gets a notification, so this person calls you, okay, and says कि आप हमसे डायरेक्ट कर लो, and मेरी फ्रेंड इतनी गधी, ये भी नहीं पूछ रही कुछ डिस्काउंट है क्या इसमें, कह रहा कि नहीं मैं देता ही ऐसे हूँ सिर्फ, और अगर आप अभी तुरंत नहीं करोगे तो किसी और के पास चला जाएगा, तो उसने पैसे इसको ट्रांसफर कर दिए साइड से, और वो प्रॉपर्टी रियली नहीं है, ओके। आई एम जस्ट क्यूरिंग अबाउट द सेमेंटिक्स ऑफ दिस। इसमें फिर हुआ कैसे? फिर एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड तो 2 दिन पहले सब कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाउ वी आर ऑल अडल्ट्स, ग्रोन अप्स, ओके, सब 35 साल के हो गए हैं, तो सबके सब एवरीवनस बिचिंग ऑन द अदर ग्रुप, ओके, किताब देखे रहना चाहिए यार कि कोई सुपर होस्ट की रेटिंग हो, ये वो, आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, दैट्स सो फनी। दोनों ग्रुप से प्रशस्ति है, दोनों ग्रुप से। बट दैट्स अ जेन्युइन स्कैम, आई थिंक इट्स अ जेन्युइन स्कैम कि booking.com पे तुम बुक करवा रहे हो, एंड उन्होंने साइड से फोन किया और तुमने वहां से ले लिया। so funny also because by the time they discovered the fan, इस स्कैम का टाइमलाइन बहुत छोटा होता है, राइट, कि तुम एक प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो और तुम 2-3 लोगों को, जितने भी लोगों को स्कैम कर पाओ, क्योंकि
बुकिंग के टाइम तक फिर कोई आके रिव्यू लिख देगा ना Correct. कि ये स्कैम है, तो द डे दे डिस्कवर्ड दिस वाज स्कैम, दे वेंट द लोग कह रहे स्कैम स्कैम स्कैम, कमेंट में लिखा होता है ये बिल्कुल फ्रॉड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. आई एंजॉयड दिस एपिसोड सो मच. This is like घोसला का घोसला sequel. Okay? This is like somebody used to write It's this. the most fun when you know तुम ग्रुप में तुम कहीं नहीं जाओ और वहां पे कुछ गंद हो. And you feel proud. So much fun. You feel proud for avoiding मेरे this. को लगता है मेरे में एक सिक्स सेंस है गाइस. मेरा पुरसी कर लेता है साला पूरा. I think this is a great moment to end this. So we've had a scam story, genuine scam story कि booking.com से अगर बुक करवा रहे तो डायरेक्टली करवाओ. वो बीच वाला जो फोन आता है 10% बचाने के लिए वो मत करो, ठीक है. उसने डिस्काउंट दिया भी नहीं. टर्की ये डिस्काउंट भी नहीं लिया है. Guys, I just want to say one thing as we end कि अपने देश में लोकल टूरिज्म आपको प्रमोट करना चाहिए. प्लीज हमसे इन्फ्लुएंस मत हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ लेना है या फिर यहाँ लेंगे, यहाँ आएंगे पूरा. इट्स प्रॉपर टूरिज्म. ये पंजाब में भी होना चाहिए. प्लास्टिक सर्जरी वाला. हम जिस होटल में रुके थे ना, बॉर्डर में हम जिस होटल में थे, वहां पे अंदर डॉक्टर्स थे. Nice. They had a dentist, they had another surgeon or something. So it was part of the package, I think, कि यहाँ से समुंदर सर्जरी में कराओ, यहाँ पे समुद्र में कूद जाओ. में देख के सोच रहे डार्क सर्कल हटा दो.